Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discuss important question of English pedagogy and passage. तो फ्रेंड, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं. पैसेज के क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देन हम लोग पेडागोजी पे आएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. डायरेक्शन कह रहा है 121 to 128. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द given ones. Okay, read the passage given below and answer the question that follow by choosing the correct option from the given ones. तो आते हैं पैसेज पे. पैसेज है फ्रेंड, पढ़ लेते हैं. टुडे यूथ वांट नेम, फेम एंड इन्फ्लुएंस विदाउट आउटिंग in required effort. They run after jobs and expect high salaries. They are not willing to start a small business of their own. They can argue that it requires money, but banks are ready to fund their project. The other arguments can be that it requires practical knowledge, but one can work part-time or as an intern to some firm in order to gain practical knowledge. Government also provide training to the entrepreneurs willing to start their own business. One's own business can range from a grocery shops, a coaching center, a computer institute. Also, success of the ventures very much depend on entrepreneur ability, hard work, dedications, and gist. So one should not wait for an ideal job, rather thinks of starting her own business. Okay, one has to climb the steps slowly and steadily to reach the apex. It may help them to load a stable and normal life and acquire a good career. We can also reduce unemployment by self-employment. The youth should be job creator rather than job seeker. Parents and teachers should jointly own responsibility of children. Parents should be aware of their children's needs. They should gather information about the various areas that their children can venture into. School and college should invite the counselors and professionals to guide the student. They can help them in choosing the right career. Future of the country lies in the hand of the youth. Their betterment would be tantamount to the betterments of the country as a whole. Okay, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यूथ टू चूज द राइट कैरियर. तो स्कूल कॉलेज हेल्प यूथ टू चूज द राइट कैरियर. ए है स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट्स अबाउट द चिल्ड्रंस नीड्स. ये रॉन्ग है. बी क्या है कि स्कूल कॉलेज शुड इनवाइट काउंसलर्स एंड प्रोफेशनल्स टू गाइड द स्टूडेंट्स. एंड सी क्या है? स्कूल कॉलेज शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट वेरियस एरिया. एंड डी है कि स्कूल कॉलेज में इनकरेज स्टूडेंट टू गेट कंप्यूटर लिटरेट. तो हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यू टू चूज़ द राइट कैरियर. तो स्कूल अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्कूल कॉलेज शुड इनवाइट काउंसलर एंड प्रोफेशनल टू गाइड द स्टूडेंट्स. ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर. ए है मनी, बी है ट्रेनिंग स्किल्स, सी है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड डी है अ लॉन्ग टाइम. तो स्मॉल टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस अभी है ना यहाँ पे. टुडे यूथ वांट नेम, फेम एंड इन्फ्लुएंस विदाउट आउटिंग इन रिक्वायर्ड effort. They run after job and expect high salaries. They are not willing to start a small business on their own. They can argue that it requires money. Okay, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा? मनी एंड ट्रेनिंग स्किल्स. ओके, money and training skills. तो टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर्स मनी एंड ट्रेनिंग स्किल, नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज अ लॉन्ग टाइम. ये गलत है. तो ए एंड बी इज राइट एंड ओके बट नॉट डी. तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड ऑन. ए है इसमें
practical knowledge, B है training and experience, C है well paid work and D है hug fund. तो a successful venture depend on, इसमें दिया है ये a successful venture depend on a practical knowledge and training and experience. ओके, A and B राइट आंसर जो होगा A and B. ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो पैसेज में ही दिए हैं. यूथ शुड चूज इंटरप्रेन्योरशिप एज कैरियर ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स नेम फेम एंड एफ्लुएंस. एंड बी है इट मे हेल्प देम टू लीड अ स्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ. सी है इट इज़ एन ईजियर कैरियर ऑप्शन. एंड डी है इट कैन टेक देम क्विकली टू न्यूअर हाइट्स. ओके, तो यूथ शुड चूज इंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन. तो इसमें अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैरियर ऑप्शन जो है सक्सेस ऑफ द वेंचर वेरी मच डिपेंड ऑन एंटरप्रेन्योर एबिलिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, गिफ्ट. तो कैरियर ऑप्शन जो है इसमें जो दिया है ऑप्शन कि इट मे हेल्प देम टू लीड अ स्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रैदर देन जॉब सीकर. हाउ कैन दिस अप्रोच वर्क फॉर ए बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. तो ए है इसमें इट वुड जनरेट हग मनी. बी है इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सी है इट वुड हेल्प यू टू बी बिजनेस ओनर्स. एंड डी है इट वुड बूस्ट अप द यूथ मॉरल. तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें कि जॉब सीकर, यूथ शुड बी अ जॉब क्रिएटर रैदर देन जॉब सीकर. हाउ कैन दिस अप्रोच वर्क फॉर ए बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यूथ इज़ नॉट विलिंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ देयर ओन बिकॉज. तो स्मॉल बिजनेस एंड ओन बिकॉज. ए है द सक्सेस ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, करेक्ट है. एंड बी है कि इट रिक्वायर्स फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो ये गलत है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. सी क्या है, गवर्नमेंट डिस्करेज स्मॉल बिजनेस, ये भी गलत है. डी है कि इट नीड लॉस्ट ऑफ डेडिकेशन एंड गिफ्ट. तो ये करेक्ट है. ओके, कि द सक्सेस ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, कि यूथ इज़ नॉट विलिंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑन देयर ओन बिकॉज द सक्सेस ग्रोथ इज़ वेरी स्लो एंड इट नीड्स लॉस्ट ऑफ डेडिकेशन एंड जिस्ट. फर्स्ट एंड ए एंड डी इज राइट, करेक्ट. तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. डियर बेटरमेंट वुड बी tantamount to the underlined word means the same as. तो ए है tangible form, बी है tasteful for, सी है equivalent to, डी है different form. तो राइट आंसर इज सी, equivalent to. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टुडे यूथ वांट नेम, फेम एंड एफ्लुएंस. चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड. तो एफ्लुएंस का अंडरलाइंड वर्ड जो है वो अपोजिट मीनिंग इसका क्या है. तो ए है इम्पोर्टेंस, बी है इसमें इम्प्रोरिसमेंट, एंड सी है प्रॉस्पेरिटी एंड डी है वीकनेस. तो इसमें है इम्प्रूवमेंट. ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब आएंगे हम लोग. डायरेक्शन है कि 129 to 135 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस. ओके, तो पैसेज क्या है इसमें कि as the nip in the air gets sharper, your skin is likely to lose its moisture and become dry and dull. So don't worry, all you need is a little tweaking of your skin care regimen to keep it hydrated. Okay, your skin is indicated change in temperature early on and you should not wait for winter to set in. Instead start preparing from the moment your experience a change in weather, says Mumbai based dermatologist Dr. Parikh. While those with dry skin and among the worst affected people with oily or combination skins may find here skin looking dull and patchy. Okay, a change is weather calls for a revamp on your skin care or routine. You need to shift to creamier
hydrating products and those that are gentler on your skin. So when you buy a face wash for winter, picks one that cleanses but does not strip the skin of its natural oils. Avoid face washes with harsh acids and paradoxic advices. Dr. Rasmi Satter, when it comes to face creams, look for ingredient like vitamin E, natural oils, soothing flower extract, and peep that repair and stimulate your skin. Avoid alcohol or clay based product, all of which have a drying effect. Okay, of course you know moisturizing is key when it comes to fighting winter skin hoods. No matter which cream you choose, and apply it multiple times during the day and night. It is or additionally massage your body with warm oil 5 minutes before a bath. Okay, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द वर्ड हाइड्रेटेड इन द पैसेज मीन्स. तो ए है इसमें वाटर्स, बी है मॉइस्ट, सी है रफ एंड डी है थिक. तो हाइड्रेटेड जो मतलब होता है इसका मीन्स होता है मॉइस्ट. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अनदर वर्ड फॉर अ डर्माटोलॉजिस्ट इज अ. ए है स्किन स्पेशलिस्ट, बी है कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट, सी है ब्रेन स्पेशलिस्ट एंड डी है वेदर स्पेशलिस्ट. तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट इज अ स्किन स्पेशलिस्ट. ओके, राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हेन द निप इज द एयर गेट शार्पर इट मीन्स द ऑन सेट्स ऑफ. ए है समर, बी है विंटर, सी है रेनी सीजन एंड डी है ऑटम. तो अभी हम लोग पढ़े निप इन द एयर गेट शार्पर. यहाँ दिया है कि निप इन द एयर इज गेट शार्पर इज विंटर. ओके, विंटर. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए है समर, बी है विंटर, सी है रेनी सीजन एंड डी ऑटम. तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, विंटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. योर स्किन गेट्स लाइक वेदरमैन. तो स्किन जो है वेदरमैन, स्किन इज डल एंड पैची. ये गलत है. ओके, एंड बी है इन विंटर योर ऑयल स्किन लुक्स डल. यस, इन विंटर योर ऑयली स्किन लुक्स डल. ओके, ये राइट हो जाएगा. तो इसमें ए इज रॉन्ग बट बी इज राइट. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वी आर एडवाइज टू अवॉइड एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज. ए है इसमें दे ओवर हाइड्रेट द स्किन, बी है दे ड्राई द स्किन, सी है दे बर्न द स्किन एंड डी है दे स्टिमुलेट द स्किन. तो वी आर एडवाइज टू अवॉइड एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट बिकॉज इज दे ड्राई द स्किन. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. दी स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिया है इसमें मोस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर नॉट डल. तो यस, ट्रू कि मोस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर इज नॉट डल. ओके, एंड बी है इसमें कॉम्बिनेशन स्किल्स आर गुड टू लुक एट. तो ये रॉन्ग है. ओके, ये गलत है. एंड सी है क्ले बेस्ड. तो क्ले बेस्ड स्किन केयर इज़ नॉट गुड फॉर स्किन. ये भी गलत है. यूज वार्म ऑयल टू मैसेज योर स्किन बिफोर गोइंग टू स्लीप. ये भी गलत है. ओके, तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो है मोस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर नॉट डल. ओके, एंड इसमें है कॉम्बिनेशन स्किन्स आर गुड टू लुक एट. ओके, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें फर्स्ट क्या है कि पीपुल विथ ड्राई स्किन हैव टू मोर केयरफुल इन विंटर. करेक्ट है कि ये ट्रू है कि पीपुल विथ ड्राई स्किन है बी मोर केयरफुल इन विंटर. अभी हम लोग पढ़े हैं कि विंटर में ड्राई स्किन के लिए पीपुल का है कि पीपुल विथ ड्राई स्किन हैव टू मोर केयरफुल इन विंटर. ये करेक्ट है. एंड बी है डॉक्टर पारिक ट्रीटेड हर ड्राई स्किन विथ क्रीमियर प्रोडक्ट्स. ये भी करेक्ट है. ये जो है ये फॉल्स है. क्रीमियर प्रोडक्ट नहीं, डॉक्टर पारिक जो थे वो स्किन स्पेशलिस्ट थे. तो ये गलत है. ओके, और सी क्या है कि ऑल फेसेस वॉशेस रिमूव नेचुरल ऑयल फ्रॉम द स्किन. तो स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा. अब आते हैं फ्रेंड इंग्लिश पैडागोजी पे. ओके, पैडागोजी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ. ए है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज. ओके, बी है मदर टंग इंग्लिश, स्टेट लैंग्वेज संस्कृत, पाली,
प्राकृतिक एंड ट्राइबल एंड मिरर लैंग्वेज। सी है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग्स। एंड डी है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ इज मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, a children of 8 years from Bihar moved to Mumbai along with her parents, and she learns Hindi, Sanskrit and English in school and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her friend in school. What would you describe the learning of Marathi? तो A है language acquisition, B है language learning, C है scaffolding and D input hypothesis। तो जो आ गया language acquisition learning आ गया इसमें language learning, तो क्या है ये language acquisition है। राइट आंसर इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। while reading a text a learner gets some prompts that support the meaning making process. what is this known as? तो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस जहाँ आ गया फ्रेंड वो सिमेंटिक होता है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग द मेन आइडिया, प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस एंड समराइजिंग। ए है बॉटम ऑफ लिसनिंग प्रोसेस एंड बी है इसमें लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सी है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस एंड डी है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो राइट आंसर इज सी, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ओके, जो मेन आइडिया होता है प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस एंड समराइजिंग का, वो होता है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज। तो ए है कंटेंट वर्ड, फंक्शन वर्ड, पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज इज कंटेंट वर्ड। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। ए है प्रोसीजुरल नॉलेज, बी है डिक्लेरेटिव नॉलेज, सी है ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन प्रोसेस, ग्रामर ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड डी है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज अ डिक्लेरेटिव नॉलेज। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन अ नेचुरल लैंग्वेज इज। ए है कंट्रीब्यूट टेक्स्ट, बी है अ लिटरेरी वर्क एंड सी है अ टेक्स्ट डेवलप बाय टेक्स्ट बुक राइटर एंड डी है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज कि ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। ए है अचीवमेंट ऑफ लर्नर, बी है असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर्स, सी है असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर एंड डी है टू फाइंड व्हाट लर्नर्स डू नॉट नो। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि लैंग्वेज असेसमेंट का ट्रू जो है वो है असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो ए है इसमें एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर। बी है एरर्स आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर as learners use language. C है errors are learning areas for the teacher only. C है errors is an indication of inferences of first language in second language। तो ये तो गलत है, इंटरेक्शन ओनली भी गलत है। सी क्या है करेक्टेड देयर देन देयर आर लर्नर लैंग्वेज, तो ये भी गलत है। एंड तो ट्रू ये है कि एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अ लैंग्वेज टीचर अलॉन्ग विथ हर सोशल साइंस कॉलेज गिव्स एन असाइनमेंट्स ऑन कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लर्नर्स आर कंसल्ट ए सोशल साइंस books and other books and documents relating to history, geography, culture and politics to write a reports and develop a posture on theme. What would this process of language learning called? A है language in social science, B है social science assignment, C है language across the curriculum and D है language writing development। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें C हो जाएगा, language across the curriculum। ओके, C ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ लर्नर while learning the new grammatical form say future perfect will have plus part participle
is able to connect what he has already learned. The present perfect form has past participle. And what would this learning strategy be called? A है cognitive strategies, B है metacognitive strategy, C है form based learning and D है collaborative learning. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा cognitive strategy. Cognitive strategy is the learner while learning in new grammatical form is future perfect will have प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज एबल कनेक्टेड जो है वो है इसमें व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल. व्हाट वुड दिस लर्निंग स्ट्रेटजी इज कॉग्निटिव स्ट्रेटजी. ओके राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल एंड डू द comprehension tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching. ए है कोचिंग, बी है ट्यूटोरिंग, सी है स्कैफोल्डिंग एंड डी है इनपुट हाइपोथेसिस. ओके तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा फ्रेंड इसका कि अ लर्नर इज एबल टू रीड a text with limited understanding. C is able to read the tasks very well and do the comprehension task to support elder brother. Support this practice is learning to scaffolding. Right answer is B, C हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टास्क विच सपोर्ट लर्नर टू कनेक्ट फ्रॉम मीनिंग एंड यूज इज. ए है कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, बी है लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग टास्क फ्रॉम मीनिंग मेकिंग एंड सी है इसमें फॉर्मेटिव टास्क फॉर ग्रामर लर्निंग एंड डी है प्रोसीड्यूरल ग्रामर लर्निंग. ओके तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड कि कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग. ए विल बी राइट आंसर. ओके आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सियसनेस राइजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग. ए है प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम्स एज फॉर्म एंड प्रैक्टिस मेनी अ टाइम टू यूज इट लेटर इन आइसोलेशन. बी है प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल्स लर्नर टू नोटिस एंड यूज इट एंड लेटर ड्रॉ दियर अटेंशन टू इट फॉर्म. सी है प्रेजेंट द ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम or grammar books or form a workbook and give exercise to solve by learners. And D है grammatical item is presented in a text or narrative and learn through drills. तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कॉन्शियस रेजिंग जो होता है वो यह होता है ग्रामर लर्निंग में प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल लर्नर टू नोटिस एंड यूज इट एंड लेटर ड्रॉ their attention to its form. Right answer is B. Next and last question देखेंगे फ्रेंड्स. Constructivism as a learning theory believes that A है children learn new knowledge through classroom teaching, B है language is learned through structured practice, C है all learners learn in the same manners and D है children learn by connecting with their previous knowledge. So constructivism as a learning theory believe that is children learn by connecting with their previous knowledge. Okay right answer is D हो जाएगा इसमें. Thank you friends.